Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, today I will discuss the division of complex numbers. That if suppose if you have two complex numbers and you want the quotient of that complex number, or you want to divide one complex number by other. So let us consider one complex number. Let z1 is equal to a plus b iota be the be first complex number, and z2 is equal to c plus d iota is the second complex number, and you want to find the quotient z1 divided by z2. Z1 then z1 divided by z2. What will be the quotient z1 divided by z2? So for that we will do some process. Z1 divided by z2, so put a plus b iota divided by c plus d iota. Z1, the a plus b iota is the value of z1, and c plus d iota is the value of z2. So there is a special process um, which we will use here in the division of complex number. In the to find the quotient of the two complex numbers, we will use some process, and the process is called rationalization process. The process is called rationalization process. Here in this case, if you divide one complex number by another complex number, so you will rationalize the denominator instead of numerator. If you need sometime in different type of question, for example, in the high level mathematics, you can also rationalize the numerator as well. But here, in the case of complex number, in the case of division of complex number, we will rationalize the denominator. What is mean by rationalization? So the process is that if you have one complex number a plus b iota and the other one is c plus d iota, so the method and procedure for division of complex number is that you will just multiply and divide the conjugate of this complex number here. So c plus d iota. So you already know that how you will find the conjugate of the complex number. So c plus d iota conjugate is c minus d iota. C minus d iota is the conjugate of this complex number. In the conjugate, we will always change the sign before the iota. So here, let's take a specific example when we calculate the last formula for the division, then you will understand it easily. So there is a 1 point, multiply and divide by the conjugate of denominator. So अब यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट है वो है c माइनस डी आयोटा. तो मैंने उसको मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है, और इससे कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज c माइनस डी आयोटा डिवाइडेड बाई c माइनस डी आयोटा, इट मीन्स दैट you are multiplying here 1. But to make easy and the process convenient for us, so we will do the rationalization process. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो c प्लस डी आयोटा है ये आपके साथ क्या है, ये आपके साथ डिनोमिनेटर है. डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट है वो है c माइनस डी आयोटा. यहाँ पे भी c माइनस डी आयोटा ही है. ठीक है, सो z1 डिवाइडेड बाई z2 विल बिकम a प्लस बी आयोटा इंटू c माइनस डी आयोटा डिवाइडेड बाई c प्लस डी आयोटा इंटू c माइनस डी आयोटा. ऊपर वाला ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें. ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके साथ ये वाला सेंटेंस आता है, एक्सप्रेशन आ जाता है. नाउ यू ऑलरेडी नो अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. So by that process, you will just multiply a plus b iota
to c minus d iota, and the same way c plus d iota with c minus d iota. सो यहाँ पे इसके मल्टीप्लिकेशन से आप देखिए, इससे ये आता है ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा और माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर। तो इससे ये आ गया, और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला का यूज़ आप करें, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपके साथ a की बजाय c है और b की बजाय आपके साथ है d आयोटा। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज़ करें तो a स्क्वायर, इससे ये a प्लस बी है फॉर एग्जांपल, और ये a माइनस बी है, क्योंकि ये तो जनरल फार्मूला है, अब ये स्पेसिफिक है। सो c प्लस डी आयोटा c माइनस डी आयोटा, तो ये बन जाएगा c स्क्वायर, फार्मूले में यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस इधर लगेगा, और d आयोटा होल स्क्वायर। रिमेंबर दैट this square is not only on the d, this square is also on the iota as well। ये आयोटा पे भी आ जाएगा, सो डी आयोटा होल स्क्वायर, तो फिर डी पे अलग स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा पे अलग स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखें रियल जो नंबर्स है इसमें ए सी है और यहाँ पे माइनस बी डी है, लेकिन आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू है आयोटा स्क्वायर -1 की बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की बजाय आप -1 पुट करें तो ये फिर मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो ये बन जाएगा प्लस बी डी। सो ए सी प्लस बी डी, यहाँ पे प्लस आप लिखे बी सी और माइनस ए डी, और आयोटा इसमें भी है इसमें भी है, तो इन दोनों से हमने कॉमन ली है यहाँ पे। ठीक है, और ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अगेन आई विल यूज द आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हेयर। यहाँ पे देखें ये बन जाएगा z1 डिवाइडेड बाई z2 ए सी प्लस बी डी प्लस बी सी माइनस ए डी इंटू आयोटा। सो देयर इज नो चेंज इन द न्यूमरेटर। यहाँ पे देखें इस स्टेप में और इस स्टेप में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जस्ट पार टू अवॉइड दिस आयोटा स्क्वायर फ्रॉम हेयर वी विल जस्ट पुट द आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो अगर आयोटा स्क्वायर की बजाय आप -1 यहाँ पे पुट करते हो तो वो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के साथ, और यहाँ पे ये आपके साथ बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो फाइनल जो आपके साथ आ गया, ये आप इसको आपकी मर्जी है जो भी कहे, इट्स अ क्यूट स्टार। ठीक है, ये एक स्टार फॉर एग्जांपल आपके साथ एक फार्मूला बन गया है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग द फार्मूला, सो डू द प्रोसेस। आपने प्रोसेस ही करना है एक एग्जांपल के लिए। ठीक है, मतलब आप फार्मूले की मदद से भी कर सकते हो, लेकिन रट्टे से बचने के लिए आप प्रोसेस को सीखें, प्रोसेस को लर्न करें, और फिर प्रोसेस को अप्लाई करके आप इस पर डिवीजन फाइंड किया करें। ठीक है, तो इसमें एक बेनिफिट यह होता है कि इसमें मिस्टेक के जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेप आप खुद करते हो और आंसर तो इन दोनों का सेम फिर आ जाएगा, कोई इस तरह इशू नहीं है। लेकिन इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को, ये जिस तरीके से मैंने आप दो जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लिए थे, एक a प्लस बी आयोटा और दूसरा c प्लस डी आयोटा, और फिर मैंने z1 डिवाइडेड बाई z2 को फाइंड किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से ही बाकी प्रोसेस और एग्जांपल के लिए भी हम करेंगे। मैं इधर एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल कंसिडर करता हूं, और बिल्कुल बेसिक लेवल का एक एग्जांपल है। ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें, हमें सिर्फ ये पता चले कि किस तरह कोशेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हम फाइंड करेंगे या किस तरह डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम करेंगे। ठीक है, सो लेट्स कंसिडर वन एग्जांपल हेयर z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। सो फाइंड z1 डिवाइडेड बाई z2, आपने ये फाइंड करनी है। तो z1 डिवाइड बाई z2, तो z1 की वैल्यू क्या है 4 प्लस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा। तो 2 माइनस 3 आयोटा का जो कंजुगेट है वो है 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि अगर ये 2 प्लस 3 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा आप कैंसिल करें ना, तो फिर उससे दोबारा ही 1 आ जाता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन ये हमारे प्रोसेस को बहुत ही आसान बना देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पता होनी चाहिए
ये जो बात है ये आप अपने साथ नोट करें कि अगर आपके साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो फिर इसका जो कंजुगेट होता है वो होता है a माइनस बी आयोटा। तो ये डिवीजन आप कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपल मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है। तो ये बन जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 आयोटा और इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। और मोस्टली जब ऐसे सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए गए हैं तो फिर इसमें ये होता है कि इसमें इस फार्मूले का यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें इस फार्मूले का यूज़ ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जब आपके साथ इस तरह के मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर कि इसमें एक रियल पार्ट हो और इसमें एक इमेजनरी पार्ट हो। ठीक है, यानी ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में अगर हो तो फिर बहुत ही आसान होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन तो ऑलरेडी आपको पता है। सो लेट्स डू इट बाय प्रोसीजर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इट विल बिकम 8 हेयर। ठीक है, इससे 8 आ जाएगा। एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 3 आयोटा, इससे आ जाएगा 12 आयोटा। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आयोटा, इससे आ जाएगा 6 आयोटा। एंड यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इससे आएगा 9 और आयोटा इंटू आयोटा, इससे आएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। तो इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूले से आप ओपन करें तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, फिर फार्मूले में माइनस है और बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 आयोटा होल स्क्वायर। ये ऊपर वाले जब आप सिंप्लीफाई करते हो ना तो यहाँ पे 9 आयोटा स्क्वायर है। तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपको पता है कि इससे आ जाता है -1। तो -1 जब आप +9 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाता है -9 और +8 इधर मौजूद है। सो -9 + 8 इससे आ जाता है -1 और यहाँ पे है 12 आयोटा प्लस 6 आयोटा, तो इससे आ जाता है 18 आयोटा। ठीक है, और ये जो आप सिंप्लीफाई करें तो इससे आएगा 4 - 9 आयोटा स्क्वायर। अगेन आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो आप यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें और फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ जो फाइनल आ जाता है वो है -1 + 18 आयोटा डिवाइड बाई 13। लेट्स राइट इट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, यानी इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को की अलग अलग फॉर्म में आप लिखें। सो z1 डिवाइड बाई z2 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 13 प्लस 18 डिवाइड बाई 13 इंटू आयोटा। रिमेंबर दैट यहाँ पे आपके साथ रियल ऑफ z1 और z2 जो है ना, रियल ऑफ z1 डिवाइडेड बाई z2 वो आपके साथ आ गया है -1 डिवाइडेड बाई 13 और इमेजनरी आप z1 डिवाइड बाई z2 इसमें आपने बहुत ही एहतियात रखनी है। इसमें आप ऐसा करें कि आयोटा कभी भी इसके साथ न लिखे, सिंपल आयोटा से के साथ जो कोफिशिएंट होता है 18 डिवाइडेड बाय 13, इसी तरीके से आपने इसको लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई कन्फ्यूजन नहीं है और ये बहुत ही आसान तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का। अगेन आप थोड़ा सा यहाँ पे देखें वीडियो में, ये जो आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है प्रोसेस को दोबारा देखिए। इन द सेम वे यू कैन डिवाइड वन कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपके सामने है, आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसमें ज़्यादातर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले का यूज़ होता है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स का नंबर का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, सो दैट वाज द डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।